Hello students, welcome to IDVN Memorial classes. Now let us solve today some question based on standard deviation. ठीक है, how we'll find mean deviation तो हमने ऑलरेडी कर लिया. अब variance and standard deviation कैसे करते हैं तो let us see. ठीक है, क्या है, find the variance and standard deviation of the following data. Data is given as xi जो ऑब्जर्वेशंस है दैट इज 4, 8, 11, 17, 20, 24 एंड 32 एंड इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज क्या है दैट इज 3, 5, 9, 5, 4, 3 एंड 1. ठीक है, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन what are the things that is to be calculated? So first we'll calculate mean. स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैसे डिफाइन है? फर्स्ट मीन हम निकालेंगे. मीन कैसे डिफाइन है? मीन डिनोटेड बाय एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर आई वेरी फ्रॉम 1 to n. ठीक है, ये मीन का है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा हाउ टू फाइंड द मीन. उसके बाद वेरिएंस के लिए विल फाइंड डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन. सो फर्स्ट let us make a table that is presenting the data in tabular form as follows. इस जो हमने टेबल बना रखा है इसमें इस डेटा को प्रेजेंट करेंगे. So first column will be representing xi, that is 4, 8, 11, 17, 20, 24 and 32. These are the 7 observations. ठीक है, काउंटिंग में अलग अलग 7 ऑब्जर्वेशन है. So here n equal to 7. That n will be denoted by small n, that is number of observation. Now the respective frequency is given as fi denoted by fi and fi क्या क्या है 3, 5, 9, 5, 4, 3 and 1. These are the respective frequency of given observations. यानी जो ये observations given है इनकी frequency भी साथ साथ दी हुई है. 4 की frequency 3 है, 8 की 5, 11 की 9, 17 की फ्रीक्वेंसी 5, 20 की 4, 24 की फ्रीक्वेंसी 3 एंड 32 की फ्रीक्वेंसी 1 है. नाउ फॉर फाइंडिंग द मीन नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एफ आई इंटू एक्स आई. सो विल फाइंड हियर एफ आई इंटू एक्स आई यानी प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा? नाउ हियर 4 इंटू 3. अब इनका हम प्रोडक्ट करके लिख लेंगे दैट इज 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 5 40, 11 इंटू 9 99, 17 इंटू 5 85, 20 इंटू 4 80, 24 इंटू 3 72, 32 इंटू 1 that is 32. Now we will find the sum of this observation. Total number of observation is 7. So here we will find sigma fi into xi where I vary from 1 to 7 and ये sum कितना होगा that is 9 plus 2 11 plus 5 16 to 18 and to 20. 0 carry 2, 2 plus 1 3, 4 7, 9 16, 8 24, 8 32, 7 39 और 3 42. So its sum is 420. So this is the sum of fi into xi. Now sum of this frequency which is denoted by n. Here n equal to कितना होगा? That is 5 plus 3 8 और 9 17, 5 30 22, 4 26 and this 4 30. So this n is actually this is sum of all frequency
where I vary from 1 to n. So यहां पर हमें n की वैल्यू मालूम हो गई 30 और सिग्मा fi into xi मालूम हो गया 420. So now we can calculate mean. Hence mean x bar will be equal to 420 by 30, that is 14. So our first step is completed, that we have calculated the mean. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, we'll find deviation of each observation from this mean, यानी 14 से हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस क्या है. So we'll find here xi minus x bar and here x bar की वैल्यू कितनी है 14 है. So xi minus 14 एक्चुअली हमें पता करना है. ठीक है, सो नाउ ईच ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, इनमें से 14 को माइनस करना है. सो दिस वैल्यू विल बी 4 minus 14, that is minus 10, 8 minus 14, minus 6, 11 minus 14, minus 3, 17 minus 14, that is 3, 20 minus 14, 6, 24 minus 14, 10 और 32 minus 14, that is 18. ठीक है, so this is the deviation of each observation from the respective mean. ठीक है, mean से हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस हमने पता कर लिया. नाउ फॉर फाइंडिंग द मीन डेविएशन एंड वेरिएंस, एक्चुअली वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वेरिएंस denoted by sigma square is defined as 1 by n into sigma fi into xi minus x bar whole square, where I vary from 1 to n है. ठीक है, अब यहां पर हमें xi minus x bar तो मिल गया. Now we'll find here xi minus x bar whole square, यानी ये जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर लेंगे. सो नाउ माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, दिस इज 36, दिस 9, 9, 36, 100 एंड 324. दिस इज द स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन. ठीक है, जो डेविएशन है ईच ऑब्जर्वेशन का, उसको हमने स्क्वायर कर लिया, इनकी वैल्यू मिल गई एज गिवन इन द टेबल. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, विल मल्टीप्लाई दिस स्क्वायर विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. सो हियर 100 into 3 कितना हो जाएगा, ये नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड विद xi माइनस x बार होल स्क्वायर. ठीक है, तो 100 into 3, दिस इज 300. Now 36 into 5, 180. Then 9 into 9, 81. Again 9 into 5, 45. Then 4 into 36, 144. 100 into 3, that is 300, and 1 into 324, that is 324 itself. Now इनका सम लेना है, we have to find the sum of this all product, जो ये हमने मल्टीप्लाई किया है fi into xi minus x bar whole square, इनका सम लेंगे. So how much it will be, 5 plus 1 6, 4 10 और 4 14, this is 14 हो गया, कैरी 1. ठीक है, now 8 plus 8 16, 4 20, 24, 26 and 1 27, carry 2. Now 2 plus 3 5, x 6 7, 3 10 और 3 13. So this is 1374. Now what actually it is, this is sigma fi into xi minus x bar whole square, where I vary from 1 to 7. ठीक है, सो हमने थर्ड स्टेप भी पता कर लिया. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस,
हेंस वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, दिस इज रेड एज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ दिस all product of frequency with square of deviation divided by total number of frequencies. So this will be equal to 1374 divided by 30. इसको जब हम डिवाइड करेंगे so its value will be कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, हमने डेसिमल यहां प्लेस कर लिया, दैट इज 137.4 ऊपर कर दिया, नीचे 3 एज्यूम कर लिया, सो हो गया 3 4 जा 12, 1 और 7 17, सो 3 5 जा 15, 2 4 3 8 जा 24, ठीक है। सो दिस इज 45.8, इट इज द वेरिएंस। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज डेविएशन सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, where I vary from 1 to n by n, यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल रखा है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे हैं सिग्मा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45.8, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6.7, सो दिस इज 6.77, ठीक है। हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, शॉर्ट में लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 6.77, ठीक है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी गिवन हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वहां एक्स आई की वैल्यू ना देकर के ग्रुप दिया रहेगा, सो उसका मिड पॉइंट लेकर के पहले हम एक्स आई निकालेंगे और उसके बाद कंप्लीट प्रोसीजर इज सेम, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। ओके बाय।